There was a pertinent question: why do people respect aggression so much? Why do they underestimate kindness so much? Why can't they see that I'm being kind and not gullible? Why should kindness be associated with somebody who is submissive and gullible? And I'm sure it's a question for many people in the group. और ये कन्फ्यूजन का एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है. Behavioral science has done a lot of study on all this, but like all behavioral sciences, everything seems very debatable and subjective. Nothing close to the truth kind of feeling. फिर मुझे देवी भागवतम में कुछ चीज़ें समझ में आई. पहली चीज़ जो समझ में आई वो ये कि तुम्हारा होना ही काफ़ी है इस सृष्टि में. सृष्टि का मतलब है कि आप यूनिट कॉन्शियस हैं, यूनिटी से अलग यूनिट में हैं, ठीक है. तो अदरवाइज मतलब वो भागवतम यहाँ तक बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु दे ऑल्सो हैव ईगोज बिकॉज दे आर identifiable as part of Prakriti. Shakti does not have ego. Why she does not have ego? Because she is Prakriti. She is not part of Prakriti. She is not a guna. अब क्योंकि वो गुण नहीं है, उनमें कोई अहंकार नहीं. बाकी हर जीव जंतु गुण अहंकार से ही उत्पन्न हुआ, या मान लो उत्पत्ति होते ही अहंकार होना जरूरी था. फॉर यू टू बी, ईगो इज अ मस्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द यूनिटी कॉन्शियसनेस. एंड द मोमेंट यू आर देयर, तुम्हारे पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी हो गई. वो कैसे? For example, if I am, I exist. So I must be somewhere physically present, right? Now there must be, if I am physically present, there must be something on my right as well as my left side, right? And left. If there is something on the right and then there is something on the left, now these two are opposites. So if I am sitting on something's right, then that thing exists on my left. If I am sitting on something's left, then that thing or person must be in my right. क्या मतलब है इसका? कि अगर मेरे में कुछ गुण हैं तो वो गुण नजर ही तब आएंगे जब विपरीत गुण वहां मौजूद होगा. यू कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑपोजिट्स विच एक्चुअली हेल्प यू, सपोर्ट यू इन आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ. ओके, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. राइट नाउ आई एम सिटिंग इन a room has that room. Now the room itself means I am sitting inside it, means I exist and the room exists. Yeah, there are other furnitures and fixtures in the room. I exist because these other objects are identifiable. कुछ मेरे आगे होंगे, कुछ मेरे पीछे होंगे, कुछ मेरे आजू में होंगे या बाजू में होंगे. Similarly, human relations. The moment you are born, the moment you have chosen a few qualities for yourself. See, when you were born, you had no qualities. You only had potential. Now, out of whatever you saw or whatever you perceived, you chose certain qualities. And very often, qualities that you either saw in somebody you liked
or are qualities you did not see in somebody you did not like. So you adopted these qualities based on your likes and dislikes. मतलब कोई ज़ोर से बोला तो और तुम्हें वो पसंद नहीं आया, तो तुमने निर्णय ले लिया कि मैं कभी ज़ोर से नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। तुम्हें किसी की मुस्कुराहट पसंद आ गई तो तुमने सोचा और निर्णय लिया कि मेरी मुस्कुराहट भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो जो हमारे गुण हैं वो हमने ऐसे ही उनका चुनाव किया है। वी हैव चोजन ऑल आवर क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स based on such observations of people we like or didn't like. Now the moment you have chosen a guna, quality, attribute, personality trait, which is either present in somebody or not present in somebody, you have created the opposite. So you are bound. How can you identify I am good? Only when you have bad people around you. How can you behave very well if you did not have negative behavior around you? So देवी says तुम्हारा होना ही काफ़ी है, तुम्हारे पक्ष और विपक्ष में लोग या गुण या शक्तियां होंगी। तो फिर क्या करें? दो तरीके हैं, या तो तुम निर्गुण हो जाओ, अपने सारे गुण छोड़ दो, ठीक है, सारे गुण छोड़ दो, then you can be, no, you will not be not anything, but you can be everything. तो निर्गुण, क्योंकि निर्गुण होते ही आप किसी भी गुण को अपना सकते हो। अब ये क्या हमारे लिए मुमकिन है? थियोरेटिकली यस, प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और जो भी ये आध्यात्म का जो रास्ता है, ये निर्गुण होने का ही रास्ता है, वेयर यू ट्रांसेंड ऑल दोज क्वालिटीज। नाउ हमने सिर्फ गुण कहा, अवगुण नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अवगुण कुछ होता ही नहीं, ये तो इंसानों ने क्रिएट किया गुण और अवगुण। अवगुण नहीं होता है, गुण होता है। मतलब एग्रेशन इज ऑल्सो अ गुणा, नॉट एन अवगुण। There are many places in life where aggression actually is a good idea. Now a person who is not accustomed to aggressive behavior can get aggressive on two occasions. One, when you are pushed against the wall or pushed beyond your limit or tolerance and you have an outburst, वो एक हुआ। Usually that produces negative results in life. बहुत करीबी लोग छूट जाते हैं, दुश्मनियाँ हो जाती हैं, एंड देन यू सिट एंड रिग्रेट कि यार ये मैंने क्या कर दिया, आई वॉज राइट बट यू नो येट आई डोंट लाइक द रिजल्ट। सो दैट्स वन पॉसिबिलिटी। व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी? यू कैन एक्चुअली बी फ्री फ्रॉम ऑल ट्रिगर्स एंड चूज ए बिहेवियर और रिएक्शन। ये निर्गुण होने का फिर भी एक रास्ता है। मतलब आप सारे गुण छोड़ दो। कैसे? अच्छा भी छोड़ दो और बुरा भी छोड़ दो। जो भी तुम सोचते हो बुरा है वो तो तुमने छोड़ दिया, मान लेते हैं हम। अच्छे भी छोड़ दो, बिकॉज इट्स ए ट्रिगर। पीपल गेट टू नो यू एंड यू गेट मिसयूज्ड फॉर योर गुड क्वालिटीज। वो भी छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? ट्रांसेंडेंस। इन सब का कारण क्या है? इट इज something you have chosen. It is something that you have chosen for yourself in the past, maybe early childhood, and now you are habituated to being that way. Now people who are aggressive are exactly in the same boat as you. Only difference is personality trait अलग है। तो ऐसा एक कहानी सुना देता हूँ, समझ में आ जाए शायद, क्या पता। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि एक ही सेशन में ये पूरी कहानी मैं समझा दूंगा, मतलब कहानी सुना दूंगा, बट ये पूरा जो मैं बताना शुरू किया था
I don't claim to be able to explain it in one shot, but we will make a good beginning. It happened once. नाम मुझे को याद नहीं होता तो मैं नाम नहीं बता रहा. सूर्यपुत्र, one of the putra of Surya, he arrived in a very very beautiful horse, and he arrived at वैकुंठ. वैकुंठ धाम में वो उस घोड़े में सवार वो पहुंचा. वैकुंठ कहाँ होता है? जहाँ विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान. ना मिलने आया था वो, विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेने आया था. लक्ष्मी जी वहीं थी. Now for some strange reason, even she did not know why, but she just couldn't get her eyes off the horse. Such a brilliant, magnificent horse. She just couldn't look away from the horse. So Vishnu Bhagwan saw this, smiled, asked her something, but she totally ignored him. Now she is known to be someone who is forever in rapt attention to Vishnu Bhagwan. कभी नहीं होता कि उनका ध्यान भटक जाए. ज़्यादा से ज़्यादा जब वो दुनिया में किसी को भी देखती हैं या पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में किसी को भी देखती हैं तो एक टेढ़ी नज़र, तिरछी नज़र से बस एक कोने से देख लिया, ख़त्म. अदरवाइज शी इज़ रैप्ट अटेंशन टू विष्णु भगवान द नारायण. अब वो उस दिन तो ऐसा नहीं हुआ. उस दिन तो घोड़ा ज़्यादा प्यारा हो गया. तो विष्णु भगवान ने कहा तुम ऐसा करो, ज़्यादा प्रेम आ रहा ना घोड़े से, तुम घोड़ी बन जाओ. श्राप दे दिया. लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े और श्राप के लिए निकल पड़ी. अब वो घोड़ी के रूप में पैदा हो गई. अब बड़ी अजीब सी घोड़ी थी. जंगल में उन्हें मालूम था, उस घोड़ी को मालूम था कि भाई मैं तो यहाँ श्राप काटने आई हूँ. सो माई लाइफ पर्पज इज डिफरेंट. बट देन जो धर्म है जो मैंने पालन करना है वो घोड़ी का ही धर्म है. एंड शी वॉज डूइंग एग्जैक्टली वॉट अ घोड़ी वुड डू एनीवेज. शी ग्रू अप इनटू अ ब्यूटिफुल she horse. I don't know what it is called. Mare. And इच्छा जागे कि भाई अब now it was also time to mate. She said, but I don't want to mate just any horse. मेरे लिए इस पूरे मेरे इस सृष्टि में एक ही मेट है, and that is Vishnu Bhagwan. So she wanted to do tapasya and make sure that it was Vishnu Bhagwan who would mate with her. कैसे करें? So she started to do, the she horse started to do tapasya and she started to pray to Lord Shiva. काफ़ी हजारों साल बाद शिव जी प्रसन्न हुए, वो आए. एंड फर्स्ट थिंग ही वॉज लाफिंग. कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा. I know who you are and I also know that you know who you are. तो फिर मैं क्यों? सीधा सीधा नारायण को बुलाना था, मुझे क्यों बुलाया? So उत्तर में उन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या है, एक बार मैं वैकुंठ में नारायण को ही देख रही थी और सडनली ही वॉज इन डीप मेडिटेशन एंड सडनली आई गॉट मिक्सड अप कि मैं नारायण को देख रही हूँ कि शिव को देख रही हूँ. क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करते हैं तो परस्पर आप ही के ध्यान में रहते हैं. अब वो कब आप बन गए मुझे समझ नहीं आया. फिर एक दिन हम लोग, मैं और विष्णु भगवान आपके दर्शन को आए थे कैलाश. वहाँ आपको देखा और डीप मेडिटेशन में आप थे, क्योंकि जब भी आप आंख बंद करते हैं तो विष्णु भगवान को याद करते हैं. देखते ही देखते आप में मुझे विष्णु नजर आए. मैं तभी समझ गई कि एक्चुअली तुम दोनों में कोई अंतर नहीं. तो शिव जी मुस्कुराए, बोले सही समझा कि मैं बाहर से तमोगुण वाला हूँ और अंदर से सत्व गुण वाला हूँ, और विष्णु अंदर से तमोगुण वाले हैं, बाहर से सत्व गुण वाले हैं.
और ऐसा सृष्टि में इसलिए होता है ताकि जो अंदर से अशांत है वो बाहर शांत रहे और सृष्टि का कार्य ठीक ठाक करता रहे। जब भी कोई समस्या हो, चुनौती हो, तो उसके अंदर का तमोगुण सामने आ जाए और वो उस कार्य को कर पाए। तमोगुण वो मेरी ड्यूटी है कि मुझे संहार का कार्य करना है, लेकिन संहार का कार्य करते करते कभी कभी सत्व गुण की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पलट जाता है और सत्व गुण प्रदान हो जाता है। ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है, वो अंदर भी रजोगुण से भरे हुए हैं, बाहर भी रजोगुण से भरे हुए हैं। बोले ठीक है देवी, आपको ये बात समझ में आ गई, अब क्या चाहिए? तो शी सेड मुझे द ओनली मेट दैट इज एक्सेप्टेबल इज नारायण, उनको आप इतला कर दीजिए या फिर मैं यहीं अग्नि में भस्म हो जाऊं। सो नारायण प्रकट हुए, वो अलग कहानी, उसी में हयग्रीव अवतार हुआ, वो कहानी फिर कभी, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि सृष्टि में जो गुण सामने समझ में आता है, नजर आता है, अंदर विपरीत गुण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो आवर बिहेवियर शुड नॉट डिटरमिन who we are. Our behaviors can be influenced by circumstances or a childhood decision taken by us, but it is not our truth. So what is our truth? Our truth is that we are nirguna ya saguna. We have either all the qualities or we have no quality, which means any quality can be adopted. उस पर ब्रह्म को, परमात्मा को निर्गुण कहा जाता है, सगुण भी कहा जाता है। प्राणायाम से क्या होता है? आपके पाप कटते हैं। पाप क्या है? जब भी मैंने कंपल्सिवली, रिएक्टिवली कोई डिसीजन लिया, बिहेवियर किया, पाप हो गया। फिर आपने नवार्ण मंत्र किया, क्यों किया? क्योंकि आपने कहा कि मेरे अंदर के जो गुण हैं, जो कंपल्सिव है, एडिक्शंस हैं, योर गुड बिहेवियर इज ऑल्सो एन एडिक्शन। चुप रहना भी एक एडिक्शन ही है। जब बोलना है तो हम बोलेंगे नहीं, जब चुप रहना है हम बोल पड़ेंगे, वो दोनों एडिक्शन है, कंपल्सिव है। तो नवार्ण मंत्र साधना में भी हम यही कर रहे हैं कि देवी शक्ति को बोल रहे हैं, भैया मेरा संकल्प है कि मैं निर्गुण हो जाऊं। निर्गुण होते ही किसी भी गुण को जो सही है उसको अपनाने की क्षमता मेरे में आ जाएगी। जो भी मैं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी, देवी शक्ति उसका साथ देंगी और वो सृष्ट हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। नवार्ण मंत्र में वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। रुद्र प्रश्न में भी वी आर डूइंग द सेम थिंग। देयर इज नो डिफरेंस। वी आर एक्नॉलेजिंग डिफरेंट देवी देवता। अब देखो, इंद्र का गुण कहानियों में तो बहुत ही उल्टा लगता है। ओके, द मोस्ट प्रॉमिस्क्यूस कैरेक्टर इन माइथोलॉजी इज इंद्र। फिर भी हमने उसको बाहों में बैठा के रखा है ना। क्यों रखा है भाई? कुछ गुण हैं जो हमें चाहिए। उसी प्रकार से हमने वसुओं को भी कान में बिठा लिया, नहीं, वसुओं को गले में बिठा लिया। वसु कौन है? 8 वसु, वही श्रापित हुए, वही महाभारत में सबसे जो अहम वसु था, वही भीष्म पितामह बने, ऐसी कहानियों में आता है। So there is no God, there is no Devi Devata that you have placed which does not have a specific गुण और विपरीत गुण। तुम्हारे 7 9 ग्रह हैं, क्या 9 ग्रह एक गुण वाले हैं? नहीं, अलग अलग गुण वाले हैं। तो अलग अलग गुण क्यों चाहिए? क्योंकि सृष्टि के कार्य में अलग अलग गुणों की जरूरत पड़ती है। राहु भी चाहिए, केतु भी चाहिए, तो उनको हेट करके कोई लाभ नहीं है।
वो बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, दुष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब आप पढ़ सकते हो। बट दैट मीन्स वो दुष्टता भी कभी ना कभी आपको चाहिए। यू कैन नॉट इग्नोर इट। सत्व गुण का मतलब ये नहीं है कि मैं अब एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरे से कोई एग्रेसिव कार्य नहीं होगा। गलत। निर्गुण होना है। यहां कुछ अच्छा नहीं है। सी either something is illegal in the human society or not approved by the society, that's all. There's nothing called good here. What is good? निर्गुण होना है ताकि आप किसी भी गुण को अपना सको जरूरत के हिसाब से, मौके के हिसाब से और एक धर्म के कार्य के हिसाब से। Okay, so that is the intention anyway. So your being good is not important, somebody else's being bad is not important. These are all things that will keep happening in life. प्रकृति में ऐसे ही होता है, एक एग्रेसिव होगा, एक नहीं होगा। अब तुम वो बनो जरूरी थोड़ी है, तुम पशु थोड़ी हो यार। एक गैया जब तक, मतलब एक पशु जब तक उसका बच्चा नहीं होता तब तक एग्रेशन नहीं दिखाती। बच्चा होते ही देख लो तुम क्या होता है उसके साथ, आजू बाजू भटकने ना दे। एक जानवर सेम थिंग, प्रेडेटोरियल एनिमल्स, दे विल नॉट, the feminine version will not allow you to come near her kids, the litter. सही गलत थोड़ी होता है, जब जो चाहिए तब अगर हम अपना सकें तो वो सही हो गया। तो 9 ग्रह हैं, हर एक के अलग अलग गुण हैं, सारे गुण एक जैसे नहीं हैं और सारे सही या गलत भी नहीं हैं। अब बृहस्पति जी को ले लो, उनका हमेशा अच्छा प्रभाव थोड़ी पड़ता है, उनके दुष्प्रभाव भी हैं। शुक्र को ले लो, उनके अच्छे प्रभाव भी हैं, बुरे प्रभाव भी हैं। शनि भगवान को ले लो। सो देयर इज नो ग्रह हुज क्वालिटी is questionable. It should not even be questionable. It's like there are times that you need air, vayu, to be destructive. नहीं तो मौसम चेंज नहीं होगा। There are times when Varun भगवान will have to be aggressive. नहीं तो बारिश नहीं होगी। तो in nature there are many such attributes or qualities that need to be there in order for existence to be there. Only in human beings we have these categories, good bad category. I told you in some conversation earlier, there are more grays here than blacks and whites, and yet our human society has continued to categorize everything as black or white, and that is why we have so much corruption. We are not corrupt because there is clarity about what is bad and what is good. There is corruption because we are not clear that there is a lot of things that are in the gray. आप अगर वकील हो तो आपको समझ में आएगा कि इतना सारा केस हिस्ट्री क्यों बताना पड़ता है। इसीलिए बताना पड़ता है, यहाँ कुछ ब्लैक और वाइट नहीं है, सब ग्रे है। तो सारे गुणों की आवश्यकता है, नहीं तो सृष्टि मुमकिन नहीं है। सो व्हाट कैन यू डू एंड व्हाट कैन आई डू? मैं अच्छा नहीं बनूं, फिर बुरा बन जाऊं, तुम्हारे बस की नहीं है। करके देख लो। हैवंट यू ट्राइड इन द पास्ट? आई कांट बिलीव यू हैवंट ट्राइड। तुमने संकल्प लिया होगा आज से आई विल बी वेरी एग्रेसिव एंड किलर इंस्टिंक्ट मेरे पास होगा। क्या हुआ उसका? नहीं हुआ ना कुछ, क्योंकि वो, अब आप बोलोगे मेरी वो नेचर नहीं है। नेचर नहीं है, अडेप्टेड नेचर नहीं है। योर नेचर इज जीरो, नो गुण, निर्गुण। सो ऑल दीज अटेम्प्ट्स आर टू लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो ऑफ कंपल्शंस, लेट गो ऑफ पास्ट इन्फ्लुएंसेस, let go of addictions, let go of this already always way of being. Let go. That's what the process is anyway. तो फिर क्या होगा? फिर आप कभी एग्रेसिव भी हो सकते हो,
जब चाहिए, तब आपको कोई सबमिसिव नहीं मानेगा, तब आपको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा, ये तय। तब कोई आपको सी प्रॉब्लम इज स्टोरीज आर ऑलवेज ऑल्टर्ड टू सूट द राइटर एंड द पब्लिशर। जो प्रचार करता है उसको सूट करना चाहिए, इसीलिए स्टोरीज हमेशा गलत होती हैं। हरिश्चंद्र की कहानी गलत है, त्रिशंकु की कहानी गलत है, ऐसी बहुत सारी कहानियां जो गलत हैं, झूठ है, अर्ध सत्य हैं, झूठ है। सो कोई यहाँ सही और गलत नहीं है, यहाँ निर्गुण होना इज द ओनली ऑप्शन यू गॉट, और हम कोशिश कर रहे हैं निर्गुण होने की।